Hare Krishna, welcome back to my next video lecture on Vedic astrology or Hindu astrology in general. Vedic तो बोल नहीं सकते. Of course, astrology is Vedanga. Anyways, whatever it is, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करते हैं and from today onwards we will discuss horoscopes on um, Saptarishi Nadi. The point of reference will be Saptarishi Nadi, written by J.N. Bhasin. You can check out on Amazon. You can get this book on Amazon, of course. So आज हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोलॉजिकली with the motive to learn something new, um, especially from the ideas of ऋषिस. ऋषिस कैसे सोचते थे, उस हिसाब से हम सप्तऋषि नाडी के हॉरोस्कोप्स को देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे. ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने ग्रंथ मैंने पढ़े हैं उसके हिसाब से I'll give some references from Brihad Jataka, Brihad Parashara Hora, Prashna Marga, and other such texts. So let's begin. This is the first horoscope, or I can say chapter fourth का first horoscope. जहाँ पर the horoscope for I'm quoting Jain Bhasin here. Horoscope 49 of Taurus ascendant belongs to a Brahmin gentleman whose wife, according to the opinion of the Saptarishi Nadi, is good looking, that is, beautiful. For wife's beauty, we have to examine so on and so forth. He explains that first of all, the wife is very beautiful. So why she is beautiful? Let's look into it. So यहाँ पर लग्न इज टॉरस ascendant, of course. टॉरस ascendant की कुंडली है. सेवेंथ हाउस इज रूल्ड बाय स्कॉर्पियो, ऑफ कोर्स. यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा है एंड कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है 100%, बट 70% दृष्टि शुक्र की है. दैट इज 1 2 3 4. इसका रेफरेंस आपको फल दीपिका एंड बृहद पराशर में मिल जाएगा. 75% दृष्टि हर ग्रह का होता है. कॉन्ट्ररी यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस है मार्स का जो 100% देता है. एनीवेज, सो यहाँ पर वीनस इज लुकिंग एट दिस सेवेंथ हाउस and seventh lord goes to the eighth house, who happens to be Mars. Okay, so Venus का influence seventh house पे गिर रहा है, that is 70%. and Venus का influence Mars पे भी पड़ रहा है because Venus happens to be in Trikona from the seventh lord, first of all. and second, विषय ये भी आ जाता है that, कि Venus and Jupiter are benefic planets along with Mercury and Moon. Mercury, if it is unafflicted or it is not conjunct with any kind of malefic, and Moon, if it is Shukla Paksha, then it becomes benefic. Otherwise, वो malefic हो जाता है. And moving further, यहाँ पर ये वाले केस में there is a beautiful shloka from Brihad Parashara Hora where Maharishi Parashara says, um, wherever the benefics aspect the lagna. Of course, he was talking with respect to the lagna. So the shloka goes like, whenever the benefic planets aspecting lagna, uh, the person becomes looks beautiful, and if malefics aspect it, the person looks ugly. So if we look at this case here, from here lagna, the seventh house becomes the spouse. So seventh house is spouse, and so for spouse the seventh house becomes the lagna. ठीक है. तो यहाँ से अब क्या हो जाता है, कोई बेनिफिट कोई ग्रह की दृष्टि वगैरह नहीं है. ओके, वेल, कूल. देन मार्स है यहाँ पर, सेवेंथ लॉर्ड गोज टू द एट्थ हाउस. ओके, इन द साइन ऑफ जुपिटर, फ्रेंडली साइन है. तो इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग, मार्स इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग हियर. एंड वीनस इज एस्पेक्टिंग द सेवेंथ हाउस. वीनस इज एस्पेक्टिंग द सेवेंथ लॉर्ड. एंड यहाँ पर नाथक कारकयोरेको बलवानिष्ठ भावग अन्योन्य तेत्व मिश्रत्वे युक्तिरित्यो हिताम फलम. शेष प्रश्न मार्क का इसका अर्थ ये है बेसिकली कि
seventh house and seventh lord should be considered along with the कारका. So यहाँ पर जुपिटर is aspecting the Venus who happens to be the कारका for spouse. ठीक है. तो एंड अब एक ब्यूटीफुल चीज ये भी है कि सूर्य और वीनस ने एक्सचेंज करके ले लिया है. सो शी मस्ट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, बिकॉज स्कॉर्पियो राशि जो है नेचुरल जोडियाक में हिसाब से इट बिकम्स एट्थ. सो इट इज रिप्रेजेंटिंग सम सॉर्ट ऑफ इलनेस, डेंजर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इसके बारे में इन्होंने ज्यादा कुछ दिया नहीं है, बट इन्होंने जस्ट इतना डिटेल्स दिया है कि दैट वाइफ वुड बी वेरी ब्यूटीफुल. सो उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो जुपिटर का एक ग्रेटेस्ट बेनिफिट, जुपिटर का इन्फ्लुएंस गिर रहा है वीनस के ऊपर. एंड ऑन एट द सेम टाइम जो सेवेंथ एट्थ नाइन्थ सन के ऊपर भी दृष्टि गिर रहा है. दैट्स अ बेनिफिट अगेन. मार्स इज इन द हाउस ऑफ जुपिटर. ये भी एक प्लस पॉइंट बोल सकते हैं. वीनस का इन्फ्लुएंस आ जाता है यहाँ पर. एंड अगेन यहाँ पर पाप कर्तरी योगा लग रहा है. ये आपके मन में होगा, ये थर्ड पॉइंट पाप कर्तरी योगा तो लग रहा है. तो देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम. यस, प्रॉब्लम होगा पॉसिबली, बिकॉज पाप कर्तरी योगा से इमोशनली वो इंसान बहुत एग्रेसिव हो जाता है. तो ये वाले केस में पॉसिबली इसकी वाइफ काफी इमोशनली एग्रेसिव होगी. बट अगेन हमारे पास लैक ऑफ डाटा, हमको हमारे पास नहीं है इसके बारे में कुछ. बट इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस बृहद पराशर के स्त्री जातकम में मिल जाएगा आपको. यू कैन चेक आउट, इंटरेस्टेड व्यूवर्स. एंड देखते हैं आगे इन्होंने कैसे देखा है. ही फर्दर सेज, लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से अबाउट द जजमेंट पार्ट. Seventh, for a wife's beauty, we have to examine the second face house. Okay, face house from the seventh. Okay, so he is examining the second from the seventh house, of course. So again, यहाँ पर this house contains the red Mars. Okay, and Jupiter is fully aspected by the significator of beauty, Venus. Wait a minute. यहाँ पर जुपिटर क्यों देख रहा है यहाँ पर. एंड इट्स लॉर्ड, अच्छा, इट्स लॉर्ड, सेकेंड हाउस का लॉर्ड को वीनस देख रहा है. ओके. एंड द एट्थ फ्रॉम मून इज ऑल्सो स्टैंडिंग फॉर द फेस ऑफ वाइफ. ओके, सो ही हैज कंसिडर्ड हियर एट्थ फ्रॉम मून एज वेल. ओके, एवमेव फलम वाच्यम चंद्रादपि सदा बुधैः. एवमेव फलम वाच्यम चंद्रादपि सदा बुधैः सेस बृहत् पराशर हो रहा. फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा इसका रेफरेंस भी. सो इट इज एप्लीकेबल. बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि कभी कभी इट फेल्स मिजरेबली. तो यू नीड टू कंसिडर लग्ना, लग्ना लॉर्ड, फिर उसके बाद मून, फिर उसके बाद लग्ना लॉर्ड को बना के एंड मून का जो लॉर्ड जो रहता है स्पेसिफिकली, जो जहाँ पर मून जिस जगह पे केंद्रित होता है वहाँ का जो अधिपति होता है वहां से भी जज किया जाना चाहिए. एंड देन ऑफ कोर्स नवांश लग्ना लॉर्ड ऑलवेज वर्क्स. फिर उसके बाद eighth from moon is also standing for the face of wife, contains the beautiful Venus, and is aspected by benefic Jupiter, who also fully aspects Sun, Lord of the fourth house. Okay. Um, Benefic and beautifying the influence on the face of the wife thus assures good looking face to her. So जाहिर सी बात है, घूम फिर के यही वो बताना चाह रहे कि सेकेंड हाउस में बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, सेकेंड हाउस में मार्स है. Mars is not Mars, of course, obviously is a malefic, but malefic का maleficence कम हो जाता है if it is in the sign of its friend, or it in its exaltation sign or in its own sign. But still malefic is a malefic, so वो जहाँ पर भी बैठेगा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा कुछ ना कुछ. So यहाँ पर सेकेंड हाउस में मार्स है. एंड ही हैज टेकन सेकेंड लॉर्ड जुपिटर इज एस्पेक्टेड बाय वीनस. अब आपके पास दो रीति हो गए जजमेंट करने के. तो फर्स्ट रीति इज यू कैन सी द लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस. देहम रूपम च ज्ञानम च वर्णम चैव बलाबलम. हाउ द पर्सन लुक्स, देह कम्स फ्रॉम द फर्स्ट हाउस. दैट इज यहाँ से
from the Lagna, Taurus Lagna, seventh house becomes uh, the Deha for wife. So here Venus is aspecting, Jupiter is aspecting Venus, again Mars. तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. एंड आई होप आज के इस हॉरोस्कोप पे मैंने ज्यादा हम्म, कुछ कुछ बोल सकते हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा. कुछ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हो एंड आपको पसंद आया हो तो ऑफ कोर्स प्लीज गिव अ थम्स अप एंड काइंडली फॉलो और मे बी सब्सक्राइब. हाँ, पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, वरना जाए. अब क्या बोल सकते हैं. एंड फॉर मोर सच वीडियोस काइंडली कमेंट. आपको क्या लगता है, आप क्या देखते हैं, आप कैसे देखते हैं ये पर्टिकुलर सिनेरियो को. काइंडली टाइप देम आउट ऑन द कमेंट सेक्शन. इफ यू wish for an astrological consultation, kindly mail me or fill the form below. धन्यवाद. हरे कृष्णा.